Hello everyone, Radhe Radhe. Today I'm gonna tell you about Hamlet. Everyone must know about Hamlet, okay, which is written by Shakespeare. So today I'll be telling you everything about Hamlet, that is its major characters, summary, characterization, and everything, which is a must for the students who are studying BA, MA in their English literature, and also who are interested in English literature. So let's start this, okay. So first, Hamlet is written by William Shakespeare. Let's discuss about its major character first. Okay. So here Hamlet. Hamlet is the title character of the poem, the play. Hamlet was the prince of Denmark and the protagonist. Protagonist means hero of the play. Okay. He is intelligent, philosophical, and deeply troubled after his father's death. So here Hamlet is troubled by his father's death. He seeks revenge against his uncle Claudius but struggles with indecision. Indecision means confusion where you are not firm to decide anything. Then the next character is King Claudius. King Claudius is the uncle of Hamlet, okay, antagonist of the play. Antagonist means villain. So here protagonist means hero, antagonist means villain. Queen Gertrude. Queen Gertrude was the mother of Hamlet. Then the ghost. Ghost was actually the spirit of King Hamlet, the father of Hamlet, Prince Hamlet, okay, and the brother of King Claudius. Polonius. Polonius was the Chamberlain of Denmark. We can say an officer in the kingdom of King Claudius, okay, and he was the father of Ophelia. Ophelia was the love interest of Hamlet. And Ophelia was Polonius' daughter and love interest of Hamlet. Lars. Lars was Polonius' son and Ophelia's brother. Horatio was Hamlet's loyal friend. And Rosencrantz and Guildenstern. These are not very much important. So from here we got to know about the characters of the play. Now there's no need to learn about these minor characters. Okay, let's move on to William Shakespeare. Okay, so William Shakespeare was born in 1564 and he died on 1616. Now, William Shakespeare was an English playwright, poet, and actor, widely regarded as one of the greatest writers in the English language and world literature. So विलियम शेक्सपियर एक प्लेराइट थे, पोएट थे, एक्टर थे एंड उनको इंग्लिश लैंग्वेज का एक ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है. ओके, सो हिज वर्क्स हैव शेप्ड मॉडर्न स्टोरी टेलिंग, ड्रामा एंड पोएट्री. एवरीवन नोज कि इनके ड्रामास और इनके द्वारा लिखे गए जितने भी पोएम्स हैं और प्लेस हैं उन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया था, राइट. एंड लाइक फर्स्ट अर्ली लाइफ एंड करियर. बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड इन 1564. तो आप सिंपली जान सकते हैं कि इनका जो बर्थ है वो इंग्लैंड में हुआ था. मैरिड एन हैथवे. इनकी शादी एन हैथवे से हुई थी व्हेन ही वाज 18. मूव टू लंदन एंड बिकेम एन एक्टर. आफ्टर दैट वो लंदन गए और उन्होंने शादी करी. लंदन गए और वहां पे जाके वो एक्टर बने. Was part of the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men, a leading theatre company. ठीक है, देन वो लॉर्ड चैम्बरलेन्स का भी पार्ट थे. मेजर वर्क्स. उनके द्वारा जो मेजर वर्क्स है, ही रोट 39 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स. सॉनेट्स क्या होती है आपको पता है? तो सॉनेट्स आर 14 लाइन पोएम्स. ओके, सॉनेट्स क्या होती है? 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसमें जिसको हम सॉनेट बोलते हैं, राइट. आयमिक पेंटामीटर में उसको भी लिखा जाता है. फाइन. देन नेक्स्ट मैं सोनेट्स के बारे में अलग से भी आपको डिस्कस करके एक वीडियो बना दूंगी. देन नेक्स्ट इज ट्रेजेडीज. ओके, सो इनके मेजर वर्क में इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज. सो इन हिज ट्रेजेडीज, Hamlet is a tragedy, okay, where Hamlet is seeking revenge for his father's murder. Macbeth is also a tragedy where a Scottish nobleman's ambition leads to his downfall. Othello is also a tragedy. King Lear, Romeo and Juliet. आज हम हैमलेट के बारे में पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दैट मैं धीरे धीरे ये सारी ट्रेजेडीज भी कवर करूंगी. देन कॉमेडीज. इनकी कॉमेडीज में कौन कौन से प्लेज आते हैं? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, मच अडो अबाउट नथिंग. ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग लाइक क्वेश्चन में कभी भी आपको आता है हैमलेट के बारे में या शेक्सपियर के बारे में लिखने में, तो यू शुड रिमेंबर कि उन्होंने क्या क्या लिखा है. अगर आप इनको कैटेगरी वाइज लिखेंगे कि इन्होंने ट्रेजेडीज में ये लिखा है, कॉमेडीज में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, तो आपकी कॉपी कुछ अच्छी दिखेगी एंड यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स.
हिस्ट्री, हिस्ट्री में इन्होंने लिखा है हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड एंड जूलियस सीजर। देन लेट्स टॉक अबाउट हिज राइटिंग स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस। मैंने इतना सारा आपको शेक्सपियर के बारे में बताया, डजंट मीन कि आपको ये सारा का सारा ही लिखना है, विच एवर इज रेलेवेंट टू यू आप वो लिख सकते हैं। सो इनकी राइटिंग स्टाइल, ये आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते थे। आयम्बिक पेंटामीटर बेसिकली रिदमिक पोएटिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे राइमिंग वर्ड्स होता है लास्ट में राइम्स पे खत्म होता है, उसी तरीके का होता है आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, क्रिएटेड ओवर 1700 वर्ड्स एंड फ्रेजेस स्टिल यूज्ड टुडे। इन्होंने काफी सारे फ्रेजेस भी बनाए हैं जो आज भी हम यूज करते हैं। यू नो फ्रेजेस, जैसे हमारे हिंदी में मुहावरे होते हैं, कहावत होते हैं, इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ब्रेक द आइज, वाइल्ड गूज चेस, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आज भी यूज होते हैं। एक्सप्लोर्ड यूनिवर्सल थीम्स, इनकी जो थीम रहती थी जो ये लिखते थे वो थीम होती थी लव, पावर, फेट, रिवेंज, आइडेंटिटी। इन सब पे इनका प्लेस जो है बेस्ड होता था। इंस्पायर्ड कंट्री, काउंटलेस राइटर्स, फिल्म्स एंड अडेप्टेशंस, काफी सारे राइटर्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ था। देन लेटर लाइफ एंड लेगेसी, सो ही रिटायर्ड टू स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन एंड डाइड इन 1616। तो हमने देखा था कि इनका बर्थ 1564 में हुआ था, बट ही डाइड इन 1616। His works continued to be studied and performed worldwide. So देखिए, हम आज भी इनका वर्क पढ़ते हैं, आज भी इनका वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो he is still alive throughout his works. So Shakespeare remains a literary icon, proving that all the worlds are stage and his words will never fade. तो इन्होंने ही बोला था कि सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है और इनके जो वर्ड्स हैं वो कभी फेड नहीं होंगे। तो दैट्स ट्रू कि आज उनके जाने के बाद भी हम इनके जो है राइटिंग्स को आज भी पढ़ते हैं, अकेडमिक्स में इनको इंक्लूड किया गया है। तो दिस वाज अबाउट शेक्सपियर। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने हैमलेट के मेजर कैरेक्टर्स देखे, देन उसके बाद हमने थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा। Okay, now theme in Hamlet. Okay, so before moving on to the themes in Hamlet, सबसे पहले हम जानते हैं कि Hamlet story में हुआ क्या था actually. What is Hamlet story about? Okay, so let's move on to main story. Main story. So the tragedy of Hamlet, written by William Shakespeare, follows the Prince of Denmark as he seeks revenge for his father's murder, leading to a series of tragic events. सो बेसिकली इसमें का जो एजेंडा इसमें ये दिखाया गया कि एक किंग था हैमलेट, ओके, नॉट किंग बट प्रिंस हैमलेट, जो प्रिंस था डेनमार्क का, ओके, एंड उसको रिवेंज चाहिए था अपने चाचा से, ओके, बिकॉज उन्होंने हैमलेट के फादर जो किंग हैमलेट थे उनको मारा था, और इसके बारे में उसको पता कैसे चला था, तो सी एक्ट 1 द घोस्ट रेवलेशन। The play begins at Elsinore Castle, where guards and Hamlet's friend Horatio witness the ghost of King Hamlet. The ghost later appears to Prince Hamlet and reveals that he was murdered by his own brother. Claudius, who now rules Denmark and has married Queen Gertrude, Hamlet's mother. The ghost urges Hamlet to avenge his death. तो एक्ट 1 में क्या होता है कि होरेशियो, जो कि हैमलेट का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसको और कुछ गार्ड्स को एक स्पिरिट दिखाई देती है, मतलब एक भूत दिखाई देता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा किंग हैमलेट से मिलता जुलता है। तो सबको ये लगता है कि ओके, ये किंग हैमलेट का ही स्पिरिट है या उनका ही भूत है। तो ये लोग जाके हैमलेट को जाके बताते हैं कि हैमलेट, हमने किंग हैमलेट जो यहाँ के किंग थे, आपके फादर थे, हमने उनकी स्पिरिट देखी है, लेट्स गो। ओके, तो हैमलेट भी जाके देखता है, ओके, हैमलेट वहां पे जाके देखता है कि ओके, ये तो मेरे फादर की स्पिरिट है। एंड वो जो किंग हैमलेट है, जो उनकी स्पिरिट रहती है, वो हैमलेट को बताती है कि मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था, मेरा मर्डर हुआ था, जो क्लॉडियस ने किया था, ठीक है। क्लॉडियस हैमलेट के चाचा हैं, तो वो बताता है कि तुम्हारे चाचा ने मेरा मर्डर किया था और तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी। तो ये जो रिविलेशन है वो होता है एक्ट 1 में, जहाँ पे सच्चाई पता चलती है प्रिंस हैमलेट को। नाउ नेक्स्ट एक्ट 2 में क्या होता है, हैमलेट्स बीइंग मैडनेस। Hamlet pretends to be mad to investigate Claudius. Polonius, the king's advisor, believes Hamlet's madness is due to his love for Ophelia, Polonius' daughter. Meanwhile, Claudius sends Rosencrantz and Guildenstern, Hamlet's childhood friends, to spy on him. एक्ट 2 में क्या बताते हैं कि जब हैमलेट को ये पता चल जाता है कि मेरे फादर की डेथ मेरे चाचा ने की है एंड वो राजा बन चुके हैं धोखा करके, तो ही डिसाइडेड कि ओके, नाउ आई विल टेक द रिवेंज और आई विल अवेंज हिज डेथ। So he decided कि I'll act
कि मैं पागलों की तरह बिहेव करूंगा, एंड बिकॉज ही वांट्स टू गेट कंफर्म फर्स्ट कि क्या सच में ऐसा हुआ था। तो वो कुछ भी करने से पहले कंफर्म करना चाहता है कि ये सच में चाचा ने ही मारा था। तो ही एक प्लान बनाता है, ठीक है मैं मैट की तरह बिहेव करूंगा एंड लेट्स सी क्या होता है। जो पोलोनियस रहते हैं, जो किंग के एडवाइजर रहते हैं, जो मैंने बताया था कि ओफिलिया के फादर रहते हैं, ओफिलिया जो लव इंटरेस्ट है हैमलेट का, तो वो पोलोनियस को लगता है कि शायद हैमलेट इसलिए पागल हो रहा है क्योंकि वो ओफिलिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो ओफिलिया का जो प्यार है वो उसको पागल बना रहा है। ओके, सो नाउ मीनवाइल क्लॉडियस क्या करते हैं, क्लॉडियस बोलते हैं रोसेनक्रेंस एंड गिल्डनस्टन को, ये दोनों जो थे ये दोस्त थे हैमलेट के, इन दोनों को बोलते हैं नजर रखने के लिए हैमलेट के ऊपर कि चेक करो कि क्या ही सच में पागल है या ही इज जस्ट एक्टिंग। ओके, एंड देन एक्ट 3 द प्ले विद इन अ प्ले। टू कंफर्म क्लॉडियस guilt, Hamlet stages a play that mimics the murder described by the ghost. Claudius' disturbed reaction confirms his crime. Hamlet confronts its mother and accidentally kills Polonius, thinking he is Claudius. Now, Hamlet एक प्लान बनाता है कि मैं एक प्ले परफॉर्म करवाऊंगा, जिस प्ले में हम सब जाएंगे, गर्ट्रूड जो मदर थी हैमलेट की, क्लॉडियस और सब देखने जाएंगे। उस प्ले को ऐसे जो है वो प्ले जो बनाया गया था वो ऐसे बनाया गया था जिसमें जिस तरीके से क्लॉडियस ने अपने फादर को मारा था, क्लॉडियस ने भाई को मारा था किंग हैमलेट को, वही वो प्ले में पोर्ट्रे हुआ था। तो हैमलेट का प्लान ये था कि अगर क्लॉडियस ने सच में मारा होगा तो वो सेम चीज देख के थोड़ा सा डर जाएगा, क्योंकि सेम चीज प्ले में भी दिखाई गई थी कि किस तरीके से एक भाई ने अपने भाई को मार दिया था, तो वही सेम चीज मतलब जो एक्चुअल में हुआ था उसको प्ले के थ्रू दिखाया गया था। तो ये देखने के बाद क्लॉडियस जो है थोड़ा सा मतलब क्लॉडियस का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब हो गया था, वो दुखी हो गया था, और ये रिएक्शन जो है हैमलेट ने नोटिस कर लिया था। एंड हैमलेट ने ये नोटिस करने के बाद ही कंफर्म्ड, वो कंफर्म हो गया कि ओके सच में ऐसा ही हुआ था, क्लॉडियस ने ही मेरे फादर का मर्डर किया है। एंड देन ये कन्फ्रंट करने के लिए वो जाता है क्लॉडियस के पास, क्लॉडियस को मारने के लिए। बट एक्सीडेंटली क्या होता है कि जब वो जाता है तो क्लॉडियस पूजा करते रहता है, ओके ही वाज प्रेइंग। तो उसको लगता है कि नहीं अभी प्रे करते टाइम अगर इसको मैं मारूंगा तो इसको तो हेवन मिलेगा, एंड आई डोंट वांट कि इसको हेवन मिले, इसको तो हेल मिलना चाहिए। तो बोलता है कि चलो मैं वेट करता हूँ। तभी वो देखता है कि गर्ट्रूड जो मदर रहती है वो बुला लेती है हैमलेट को। तो हैमलेट से बोलती है कि हैमलेट व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो हैमलेट अपनी माँ को भी बहुत चिल्लाता है कि आपने बहुत गलत किया मेरे फादर के साथ, मेरे फादर की डेथ के बाद आपने मेरे चाचा से शादी कर ली, दिस इज नॉट गुड एंड ऑल। एंड तभी उसको पीछे से कुछ आहट आती है, उसे लगता है हैमलेट हमारी बात सुन रहा है, एंड वो बिना देखे सीधे अपनी तलवार चला देता है और देखता है कि वो क्लॉडियस नहीं था, उसको लगता है क्लॉडियस पीछे खड़ा है, पर वो क्लॉडियस नहीं रहता, वो किंग पोलोनियस रहते हैं। एंड इस तरीके से किंग पोलोनियस की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। Ophelia's madness and Hamlet's exile. After Polonius' death, Ophelia goes mad and drowns in a river. Claudius, fearing Hamlet, sends him to England with orders for his execution. However, Hamlet escapes and returns to Denmark. अब जब पोलोनियस की डेथ हो जाती है और फिर क्लॉडियस भी ये सब देख लेता है तो समझ आता है कि हैमलेट मुझे मारना चाहता है। एंड पोलोनियस की डेथ के बाद ऑफिलिया भी पागल हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो अपने फादर की डेथ नहीं देख पाती है। अब क्लॉडियस क्योंकि हैमलेट से डर रहा था तो वो क्या करता है, हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है और वहां पे इंग्लैंड के राजा को बोल देता है कि इसको मार दो। बट वो हैमलेट को ये नहीं बताता, वो हैमलेट को बताता है कि हैमलेट क्योंकि तुमने पोलोनियस को मारा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम बच जाओ, अगर यहाँ रहोगे तो सब तुम्हें मार देंगे, तो इट्स बेटर कि तुम बाहर चले जाओ तो कोई तुम्हें जो है ढूंढेगा नहीं और तुम वहां पे अपनी लाइफ अच्छे से रह सकते हो। बट दिस वॉज हिज प्लान, है ना, उसकी चाल ये थी कि वो वहां पे भेजेगा और वहां के राजा से हैमलेट को मरवा देगा। बट हाउएवर हैमलेट वहां से वापस आ जाता है डेनमार्क की ओर। एक्ट 5 ट्रैजिक ड्यूअल एंड डेथ्स। अब बाद में क्या होता है, जो लार्ड्स रहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोलोनियस के दो बच्चे थे, एक ऑफिलिया एंड उसका ब्रदर लार्ड्स। अब लार्ड्स को जब पता चलता है कि मेरे फादर को हैमलेट ने मार दिया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो हैमलेट से लड़ाई करने आ जाता है अपना रिवेंज लेने के लिए।
ओके, व्हेन क्लॉडियस सॉ दिस, सो क्लॉडियस को ये बहुत ही अच्छा मौका लगता है। क्लॉडियस जो है बहुत भड़काता है दोनों को और बोलता है कि अरे दोनों के बीच में एक एक वो हो जाए, युद्ध हो जाए, है ना, एंड लेट्स सी हु वॉन, कौन जीतता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक वॉर अरेंज करा देते हैं दोनों के बीच में। एंड वो जाके जो है सीक्रेटली क्या करता है, जो लार्ड्स रहता है उसको एक पॉइजन वाली तलवार दे देता है और बोलता है तुम इस तलवार से लड़ो, क्योंकि अगर ये तलवार जरा सी भी क्लॉडियस हैमलेट को लग जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से वो अगेन एक प्लान बनाता है हैमलेट को मारने का, और वो बोलता है कि अगर तुम नहीं भी मार पाए उसको, तो उसने एक पॉइजन ड्रिंक तैयार करके रखी थी कि जब मैं हैमलेट को ड्रिंक पिलाऊंगा तो वो उससे भी मर जाएगा। तो उसने दो तरीके के प्लान बना के रखे हुए थे, बट एक्सीडेंटली व्हाट हैपेंड, गर्ट्रूड ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन एंड डाइज। गलती से गर्ट्रूड वो ड्रिंक पी लेती है एंड मर जाती है। लार्ड्स wounds Hamlet with a poison sword but is also wounded, एंड लार्ड्स हैमलेट को तो मारता है उस तलवार से, बट वो तलवार उसको खुद को भी लग जाती है जिससे लार्ड्स की भी डेथ हो जाती है। एंड मरने से पहले लार्ड्स क्लॉडियस की सारी प्लानिंग जो है हैमलेट को बता देता है, जिससे हैमलेट को पता चलता है कि ओके इसने ये पॉइजन तलवार बनाई थी, मुझे मारना चाहता है, ऐसा वैसा सारी चीजें क्लियर कर देता है। तो हैमलेट भी अब क्या करता है, हैमलेट खुद तो मरने ही वाला था क्योंकि वो पॉइजन उसको चढ़ चुका था ऑलरेडी, तलवार लग चुकी थी, बट वो खुद मरने से पहले क्लॉडियस को भी मार देता। ओके, एज द डैनिश रॉयल फैमिली लाइज डेड, प्रिंस Fortinbras of Norway arrives and takes control of Denmark। अब क्योंकि वहां सब मर चुके थे, किंग क्लॉडियस मर चुका था, हैमलेट जा चुका था, गर्ट्रूड जा चुकी थी, लार्ड्स की भी डेथ हो चुकी थी, तो अब वहां पे कोई भी कंट्रोल के लिए नहीं था। तो लास्ट में क्या होता है कि नॉर्वे के प्रिंस आते हैं और पूरे डेनमार्क का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। तो दिस इज हाउ ये स्टोरी जो है एंड हो जाती है। ओके, नाउ अब हम आते हैं थीम्स पे, कि अगर आपको आता है कि इसकी थीम्स के बारे में बताइए। तो फर्स्ट थीम तो रिवेंज एंड जस्टिस। आपको पता है कि थ्रू आउट द प्ले इसमें रिवेंज एंड जस्टिस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से स्टार्ट कैसे होती है। पहले जो है हैमलेट रिवेंज लेना चाहता है अपने फादर की डेथ का, बाद में लार्ड्स इसमें आता है जो अपने फादर की डेथ, पोलोनियस का डेथ का रिवेंज लेना चाहता है एंड उसको भी जस्टिस चाहिए। तो हमने देखा कि पूरी जो सेंट्रल थीम है वो रिवेंज और जस्टिस के ही अराउंड जो है सर्कुलेट हो रही है। देन मैडनेस, रियल एंड फील्ड। फील्ड का मतलब होता है बनावटी। ओके, मतलब जो मैडनेस थी वो रियल थी क्या, सच में हैमलेट ये जो सच है कि फादर की डेथ क्लॉडियस ने की थी कि सच में पागल हो गया था, ही वाज जस्ट एक्टिंग। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन रहा है पूरे थ्रू आउट द प्ले में, जिसमें कुछ कुछ जगह ऐसा लगा है कि नहीं ही वाज एक्टिंग, उसके जो मूव्स थे बहुत कैलकुलेटेड थे, बट कहीं जगह ऐसा भी फील हुआ है कि नहीं ही वाज रियली मैड, वो सच में पागल हो गया था। ठीक है, तो ये मैडनेस इसकी थीम आ सकती है। देन अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ओके, अब अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी यहाँ पे जैसे क्लॉडियस, क्लॉडियस जो है वो दिखने में था कि वो बहुत अच्छा रूलर है, राइट, बट इनसाइड ही वाज अ मर्डरर। तो यहाँ पे अपीयरेंस और रियलिटी में डिफरेंस है कि उसका अपीयरेंस कैसा है कि ओके ही इज अ वेरी करेजियस एंड ब्रेव किंग, बट रियलिटी क्या थी कि उसने अपने भाई का मर्डर करके राजा बना था। ओके, एंड देन हैमलेट, हैमलेट की भी मैडनेस और उसकी एक्टिंग। ओके, तो रियलिटी में वो मैड था या नहीं था, बट वो एक्ट कैसा कर रहा था, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। तो दिस इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी में डिफरेंस दिखाया गया। करप्शन एंड डिके। ओके, डेनमार्क में लाइक यहाँ पे दिया है कि डेनमार्क इज डिपिक्टेड एज अ डिसीज्ड एंड डिकेइंग स्टेट सिंबलाइजिंग मॉरल करप्शन। द फेमस लाइन समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हाइलाइट्स द थीम ऑफ पॉलिटिकल मॉरल डिके। बताया गया है कि डेनमार्क को स्टार्टिंग से ही करप्ट बताया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन में लिखा था यू कैन ऐड समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये जो कुछ लाइन्स होती है ना, ये आप कोट कर सकते हैं जब भी आप आंसर्स लिखें, बिकॉज ये आपको एक एक्स्ट्रा मार्क दे सकते हैं, बिकॉज वेन एवर जो भी चेक कर रहा है जब ये देखता है तो डेफिनेटली आपको जो है कुछ इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही इससे हुई है कि स्टेट ऑफ डेनमार्क जो है वो डिसीज्ड है, डिकेइंग है, करप्ट है। फेट एंड फ्री विल। Hamlet struggles with whether he controls his own fate or is subject to destiny. He contemplates life, death, and whether humans can shape their own outcomes, particularly in his famous to be or not to be soliloquy. तो फेट एंड फ्री विल, ओके, मतलब वो जो है वो कंफ्यूज्ड रहता है कि क्या वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता है या फिर जो हो रहा है उसके साथ ही जो डेस्टिनी हमारी है।
तो फेट एंड फ्री विल मतलब जो डेस्टाइन्ड है वो ही मेरे साथ होगा या मैं अपने एक्ट्स को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। डेथ एंड मोर्टैलिटी, यहाँ पे डेथ एंड मोर्टैलिटी दिखाई गई है। इनएविटेबिलिटी मतलब अनअवॉइडेबल, जिस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि डेथ को इतना जो है हैमलेट ने ट्राई करने के बाद, क्लॉडियस को ट्राई करने के बाद भी कोई भी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता है। यहाँ पे आखिर में सबकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे ये दिखाया गया कि जो लास्ट होता है, जो एंड होता है वो यही होता है, ठीक है, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। बिट्रेयल एंड डिसेप्शन, बिट्रेयल एंड डिसेप्शन आपको पता है सेंट्रल थीम में ही दिखाया गया कि कैसे जो है क्लॉडियस ने धोखा किया था किंग हैमलेट के साथ, ओके। एंड देन क्लॉडियस ने हैमलेट के साथ भी धोखा किया था। रोसेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न who were friends of Hamlet, they also deceived Hamlet because they were spying on him, जासूसी कर रहे थे वो Hamlet, okay. So this is how we can see what we have studied so far. We have studied about the characters of Hamlet, then we have studied about the author of Hamlet, William Shakespeare. After that, we also studied about the themes in Hamlet, what was the main story of Hamlet. Okay, so till now we have covered 4 aspects. Then next, summary of Hamlet. Now the summary I am not going to describe you, okay, on the basis of story you can create the summary by your own, or I'll be sharing this PDF to my Telegram account from where you can have access of this PDF, and then you can just have, you can just go through it for once and then you'll be ready, because अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया है, after that you can write the summary by your own. Then character description, okay. I think now you are ready to describe the characters. Hamlet, who was Hamlet, what was his role in the play, who was King Claudius, Queen Gertrude, the ghost, Polonius, Ophelia, Lars, Horatio. Till here only, no need to write about Rosencrantz, Fortinbras, Osric. These are minor characters. So till eight main characters were there. You can write about these characters, and these are enough. Okay. And then is there Hamlet as a tragedy? Yes, this is a main point. Hamlet as a tragedy. If आपको आता है कि Hamlet as a tragedy बताइए, तो first you can say tragic hero Prince Hamlet, because yeah, he was a tragic hero. Hamlet is a noble prince who experienced a fall from grace. कैसे उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। फर्स्ट वो मैड की तरह बिहेव करता है, उसको पहले सच पता चलता है, ठीक है, एंड देन वो कंफ्यूज रहता है कि मैं कैसे मारूं, क्या मारूं, उसको रिवेंज लेना था बट कोई आइडिया नहीं होता है। तो अ ट्रैजिक हीरो, ट्रैजिक फ्लॉ हैमर्शिया। हैमलेट्स फैटल फ्लॉ इज हिज इनडिसीजन, ठीक है। तो ट्रैजिक फ्लॉज दिखाए गए हैं कि वो मारना तो चाहता था क्लॉडियस को, बट ही वाज कंफ्यूज्ड, ही वाज नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर प्लान टू एवेंज हिज फादर्स डेथ। सो दिस इज हाउ ये ट्रेजेडी में बदल जाती है, ओके। ही वाज नॉट रेडी टू टेक इमीडिएट एक्शंस, ओके। तो ये दिखाता है। Then revenge and fatal consequences. The play revolves around revenge. ये हमने themes में भी देखा था कि पूरा play जो है revenge के around ही देखा गया है। तो you can include the same point here कि कैसे revenge को central theme में दिखाया गया है, and that's why we can consider it as a tragedy. Themes of fate and free will, ये भी हमने देखा था themes में, तो you can take from it. देखिए themes और tragedy इसमें बहुत सारे points common होंगे जिसको आप mix करके लिख सकते हैं। प्लेस क्लाइमैटिक ट्रैजिक एंडिंग, इसकी एंडिंग बहुत ही ट्रैजिक थी जिसमें सबकी डेथ हो जाती है, गर्ट्रूड की, क्लॉडियस की, हैमलेट की, लार्स की। तो यू कैन राइट अबाउट इट, okay. And then conclusion. Hamlet follows the structure of a classic tragedy where a noble hero, flawed by indecision, meets a tragic end. The play's deep exploration of fate, revenge, and mortality makes it one of Shakespeare's most profound tragedy. तो ये जो है आप कंक्लूजन अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सारे एस्पेक्ट जो मेरे हिसाब से कवर होने चाहिए थे हैमलेट के बारे में, आई हैव डिस्क्राइब एवरीथिंग। अब जब भी आपको हैमलेट के बारे में पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक कोई भी डाउट इसमें आपको रहेगा, ओके। एंड फॉर दिस पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगी, यू कैन हैव दिस पीडीएफ एक्सेस एंड देन आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।